हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक ऑफ क्लास +1। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। Internal energy is represented by the symbol U or E. Normally we use the symbol U. What is meant by internal energy? Internal means inside the system. So every system has a definite amount of energy stored in it. That energy is called as internal energy. This energy is sum of many different types of energy. Let's suppose I have a chalk made up of calcium atom, well known to you. That means internal energy of this calcium atom is sum total of nuclear energy, electronic energy, chemical bonding between nucleus and electron, potential energy, kinetic energy, translational energy, vibrational energy, rotational energy, and many other types of energy. So what is the definition for internal energy? That internal energy is sum total of all types of energies present in the system. One important term you should be in mind, that exact and accurate value of internal energy कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी क्या है? दैट इज द सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी। नाउ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एनर्जी कैलकुलेशन इज क्वाइट टफ, सो वी आर नॉट कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी आर कंसर्न विद डेल्टा यू। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, that time energy changes, internal energy changes, that represented by delta U. You can say UP minus UR, internal energy of product minus internal energy of reactant. It is also represented as U2 minus U1. So we normally discuss in this chapter change in internal energy. Change in internal energy is a state function. Why? Let I have a beaker, contain water in it. Let's suppose उसकी जो एनर्जी है वो U1 है और मैंने उसमें with the help of this pedal चर्निंग प्रोसेस की, रोटेट किया। रिजल्ट क्या आएगा? इसका टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर लेट T2 हो गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी। वो कितनी होगी? लेट दैट बिकम U2 नाउ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हियर इज U2 माइनस U1, लेट दैट इज 1 किलो जूल। Now I have another beaker contain the same amount of energy, but in this case I use a electrical rod. With the help of electric rod, I have increased its temperature from T1 to T2, same range. As a result, its energy is also increased up to U2. Here is delta U. Again U2 minus U1, that is again 1 kilojoule. Now how this change occurred? We are not concerned with that. What is pathway used for this change? We are not concerned with that. We are concerned only with change in internal energy, means initial and final state. And state function are what? Which depend, the properties which depend only in the states, not depend upon path. So change in internal energy, or you can say internal energy, is a state function.
And one term also should be in mind that it is a extensive property, because जितनी इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी इसमें इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी. Internal energy depend upon quantity of the substance present in the system, so it is called as extensive property. It is all about internal energy, or you can say change in internal energy. Now let's study about work. Work is said to be done if point of application of the force is displaced in the direction of a force. Work, here we discuss, is of two types. One is known as mechanical work, and second is electrical work. For the mechanical work, expression is minus P external into change in volume. Delta means change in volume. Electrical work is equal to EMF, which stand for electromotive force, into quantity of charge. Now we are mainly study here mechanical work. Now how this expression is obtained, we are study about that one. अब बेटा हम करेंगे डेरिवेशन फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और यू कैन से डेरिवेशन फॉर वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. तो ये एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव हुआ? लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने यहाँ पर गैस फिल की हुई है, और उसके ऊपर ये हमने लगाया है पिस्टन. पिस्टन के बाहरी तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्किंग ओवर पिस्टन, जबकि गैस का अपना प्रेशर भी होता है. अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज लाई कर रही हैं. वन इज आउटर प्रेशर, जिसे हम P एक्सटर्नल कह रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन P ऑफ गैस. मीन्स अगर बाहरी प्रेशर ज्यादा होगा तो उसमें गैस को प्रेस करना है, मतलब गैस कंट्रैक्ट करेगी. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी कि गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो. रिजल्ट क्या होगा? गैस अपवर्ड मूव करनी शुरू हो जाएगी, मतलब गैस एक्सपेंशन प्रोसेस में जाएगी. और यहाँ पर हमने किस चीज का डेरिवेशन करना है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन का. तो हम ये सपोज कर रहे हैं, हम ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर. रिजल्ट क्या होगा? दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड. लेट्स सपोज ये DL डिस्टेंस को कवर करता है, और इसकी पोजीशन इनिशियली यहाँ पर थी और फाइनली ये पोजीशन ऑब्टेन हो गई. इट कवर डिस्टेंस दैट इज DL. तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन बाय द गैस यहाँ पर हो रहा है. तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? DW. DW मीन्स स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर, जो हमारे पास क्या है? DL. हमारे पास जो फोर्स है उसको हमने प्रेशर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू ड्राइव दिस वन एक्सप्रेशन. तो हमारे पास P एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स ओवर एरिया. यहां से हम फोर्स के एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हैं. तो फोर्स इक्वल टू व्हाट? P एक्सटर्नल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Put this value, that is number 2, into the 1. We get the expression dW equal to P external into area into distance cover. But this area into distance cover is what? dV. That means change in volume. Small change in volume. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? dW is equal to P external into स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. यहां तक एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए बना है? स्मॉल वर्क डन के लिए. इफ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, तो हम क्या करते हैं? टेक इंटेग्रेशन.
इंटेग्रेशन ऑफ dw, इंटेग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dv एंड पुट द लिमिट्स कि वॉल्यूम जो है वो V1 से चेंज होकर कहां पर पहुंचता है V2 तक। तो हमारे पास लिमिट्स क्या आ गई V1 और यहाँ पर V2। नाउ वी आर रेफरिंग दैट हियर इज चेंज इन वॉल्यूम अक्कर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास जो प्रेशर है ये क्या है कांस्टेंट। तो फर्दर हमारे पास क्या आएगी टर्म इंटेग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू व्हाट w। नाउ कैपिटल W से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P एक्सटर्नल ये हमारा कांस्टेंट है सो इसकी इंटेग्रेशन नहीं करेंगे। इंटेग्रेशन ऑफ dv जब हम करते हैं तो वी गेट V2 माइनस V1 एंड दिस चेंज फ्रॉम V2 माइनस V1 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू व्हाट डेल्टा V। Delta V here represent total change in volume. Now according to SI conventions, it should be in mind that work for expansion represented is always by the negative sign. और वैसे भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमारे पास क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन। तो लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी ये ऑपोजिट टू ईच अदर लाई कर रहे हैं जिसके कारण हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या आना चाहिए माइनस। और एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एसआई कन्वेंशंस हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास डेरिवेशन फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑब्टेन होता है। मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया सो एक्सप्रेशन हमने किस में देना है नेगेटिव में। इफ देयर इज नीड ऑफ वर्क ऑफ contraction then we use positive symbol. These are two very important terms which should be in mind. नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया गया, सो प्रेशर इज वेरिएबल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। टेक द इंटेग्रेशन टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। सिमिलरली हमने वही इंटेग्रेशन यूज की है, वही लिमिट्स पुट की है V1 एंड V2, बट नाउ P एक्सटर्नल बिकॉज कांस्टेंट नहीं है सो एज सच हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडियल गैस एक्सप्रेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। यहां से PV इक्वल टू nRT और P एक्सटर्नल के लिए हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी nRT अपॉन V। वो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ पर N लेट दैट इज कांस्टेंट, 1 मोल हमने सपोज किए हैं, R गैस कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, सो nRT तीनों कांस्टेंट थे, उसकी हम इंटेग्रेशन नहीं करेंगे। तो वी विल गेट दिस वन एक्सप्रेशन dV ओवर V, इंटेग्रेशन लिमिट्स आर V1 एंड यहाँ पर V2। नाउ इट इज वेल नोन दैट इंटेग्रेशन ऑफ dx ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। क्लियर? नाउ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x की जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज V2 ओवर V1। यहाँ पर हमारे पास क्या आया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V, उसकी हमने लिमिट्स पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा V2 ओवर V1। If we want to represent this expression in terms of log 10 because natural logarithm stand for the log e, if we want the expression in the term log 10 तो
तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, W 2.303 nRT log 10 V2 over V1 having sign negative. और इफ यू वांट टू रिमूव नेगेटिव साइन तो यहां पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो सकता है, 2.303 nRT log V1 over V2. We have this one expression obtained if work done in the isothermal and reversible expansion. Next we discuss about heat. Heat is mode of energy transfer between the system and surroundings as a result of difference of temperature between them. It is usually represented by the letter Q. और हीट के लिए आपने माइंड में रखना है कि when system gains heat then we use positive Q, means साइन जो हम यूज करेंगे दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ने कुछ गेन किया है. एंड व्हेन सिस्टम लॉस हीट वी यूज नेगेटिव क्यू. इट इज वेल नोन कि यूनिट हमारे पास हीट के क्या होते हैं, दैट इज कैलोरीज. और 1 कैलोरी 4.184 जूल्स के इक्वल होती है. वन मोर थिंग, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन. ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, बिकॉज लेट्स सपोज अ पर्सन इज रीच एट द 5th floor. तो if he is using lift to reach there or walking, then work done is same? No, work done in both the cases different because that depend upon the path taken. Similarly, heat is also a path function, not a state function. हमारी अगली टर्म है first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form into another. Or another definition, that energy of universe remains constant. अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हमारे पास लेट्स सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है, U1. सिस्टम ने नेट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब सिस्टम ने एनर्जी को गेन किया है, हीट को गेन किया है. तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, पॉजिटिव Q. सिमिलरली वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, पॉजिटिव W. एज ए रिजल्ट फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी, U2. सो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ U1, Q एंड W. सो वी गेट दिस वन एक्सप्रेशन दैट U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. एंड U2 माइनस U1 इक्वल टू व्हाट, Q प्लस W. मीन्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. एक टर्म और माइंड में रखना कि अगर हमारे पास मेंशन किया जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, माइनस W. इफ हीट इज एवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम ने हीट रिलीज की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस Q. तो जब भी हमने न्यूमेरिकल करनी है इस चीज को हमने मेनली माइंड में रखना है. तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रेफर कर रहा है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इफ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सिस्टम एब्सॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W था, बट यहाँ पर
सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, सो क्यू इज पॉजिटिव. वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो एक्सप्रेशन इज इन नेगेटिव. Put the value that is 15 kilojoule and 5 kilojoule. As a result, delta U हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 kilojoule. This is the answer for the first part. In the second part, again according to first law of thermodynamic, delta U equal to Q plus W. But in this case, work is done on the system, so work remain positive. 15 kilojoule of heat is given out. System ने heat को release किया है, तो Q is in minus while work is positive. As a result, Q that is given 15 kilojoule. So minus 15 kilojoule plus work is 5 joule. As a result, minus 10 kilojoule is answer. तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट आ रहे हैं. यहाँ पर प्लस 10 किलोजूल आ रहा है और यहाँ पर माइनस 10 किलोजूल आ रहा है. सो जब भी आपने न्यूमेरिकल करनी है, साइन कन्वेंशन का मेनली ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन विच कैन डू वर्क विदाउट यूज ऑफ एनर्जी. कोई भी ऐसी मशीन बेटा नहीं बनी जो अपने आप कंटिन्यूसली वर्क करे और उसे किसी भी फॉर्म की एनर्जी नहीं चाहिए. लेट्स सपोज हम किसी गाड़ी की या फिर किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो दैट इज वर्किंग ओवर द वेदर सीएनजी, वेदर पेट्रोल और डीजल. अगर हम टॉय कार की बात कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो वर्किंग ओवर सेल्स, और सेल्स में आपको पता है केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है. सिमिलरली आवर बल्ब, आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर वर्किंग ओवर इलेक्ट्रिसिटी. So that need any type of energy, and by the working that energy is converted into the another form of energy. It means energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form into the another form. Next is let water. Water को जब डिकम्पोज करना है into the gaseous H2 and O2, तो the need of electrical energy, that's value is 286.2 kilojoule. Similarly, if H2 plus half O2 इन दोनों को कंबाइन करके 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म किया जाता है, तो ड्यूरिंग दैट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम. इट मीन्स दिस एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड. और यहां पर हम कहें कि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, नो, दैट इज नॉट डिस्ट्रॉयड. Here is only conversion of energy from one form to another. In the last point that is given by scientist Joule, he a number of experiments के थ्रू हमें समझा कर गए कि जब भी 4.184 जूल वर्क किया जाता है तो that produce 1 calories of heat. So these are the different methods by which we can prove that there is conservation of energy take place. Energy of whole universe remain same. Now we discuss about enthalpy. Enthalpy or heat content of the system is equal to sum total of internal energy and pressure volume energy. Its another definition states that enthalpy change of the system is equal to heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है. सो एंथैल्पी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? H इक्वल टू यू प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. चेंज इन एंथैल्पी विच इज स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. यहाँ पर इनिशियल स्टेट हम रेफर कर रहे हैं फॉर रिएक्टेंट एंड फाइनल स्टेट फॉर द प्रोडक्ट. तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट.
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। तो इट मीन्स रिएक्टेंट की हीट जो होगी दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच के लिए साइन कन्वेंशन क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? और इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट हैपन, प्रोडक्ट की एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। So delta H is positive for endothermic reactions. This relation is very important, that relation between delta U and delta H. तो हमारे पास हम सपोज कर रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर रहा है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ये हमने जरूर मेंशन करना है। तो रिएक्टेंट लेट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास एंथैल्पी का साइन ले रही है H स्मॉल r। क्लियर? HR इज इक्वल टू व्हाट? UR प्लस PVR। हम P के साथ R नहीं पुट कर रहे बिकॉज प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। HP दैट इज एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगेन P रिमेन कांस्टेंट, सो वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इट, दैट इज PP और PR। It is suppose 1 and this is 2. Now subtract 2 from the 1, we get this one expression. HP minus HR, enthalpy of product minus enthalpy of reactant is equal to delta H. Similarly, UP minus UR is equal to what? Delta U. Here pressure is constant, so common हमारे पास क्या आ जाएगा? Volume of product minus volume of reactant. So it is represented by delta V. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया that shows the relation between delta H and delta U. If we are discussing about a gaseous substance, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है which says that PV is equal to nRT. बट हमने शुरू में ही क्या सपोज किया है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज किस में होगी? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में। तो हमने इनिशियली सपोज कर लिया जो रिएक्टेंट होता है उसके लिए वॉल्यूम सपोज कर लिया V1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज सपोज टू बी N1। और फाइनल फॉर द प्रोडक्ट हम उसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं 2। तो वॉल्यूम हो गया V2 एंड number of moles of gas is represented by N2. Now again 1 and 2 इसको suppose किया गया है। 2 minus 1 हम represent करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? pressure that is constant, change in volume which is represented by delta V equal to what? Change in number of moles of gas which is represented by symbol delta Ng. So put this expression here, we get another expression for relation between delta H and delta U, and this is very important expression. It is a base for the numericals also. In this case delta Ng आपने माइंड में रखना कि हम सिर्फ गैसियस मोल की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर कोई चेंज ना आ रही हो तो डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI। ये भी हमारे पास गैस है, दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो गैस। तो डेल्टा Ng इस केस में हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल फॉर H2, 1 मोल फॉर I2। तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा Ng का? दैट इज 0। ये हमारे पास क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, मतलब इस केस में डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U के। और केस लेट हमारे पास रिएक्शन दिया गया है दैट N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। ऑल दीज आर इन द गैसियस स्टेट, ये वेल नोन है आपको। तो हमारे पास डेल्टा Ng क्या आएगा? इसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल इज 2, इन केस ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 4, 1 प्लस 3। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की हमारी वैल्यू क्या आई है? माइनस में, दैट इज -2। क्लियर? तो अगर ये माइनस में है, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू
RT की जो भी वैल्यू वो पुट करते हैं, डेल्टा NG वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस में, तो क्या आ जाएगा डेल्टा H इज स्मॉलर देन डेल्टा U। और इसी तरह से आप ग्रेटर का केस भी रेफर कर सकते हो। ग्रेटर का क्या हमारे पास केस होगा, लेट द एग्जांपल ऑफ PCl5 change into PCl3 plus Cl2, all are in the gaseous nature। हमारे पास डेल्टा Ng will be 2 minus 1, तो क्या आ गया, that is +1। as it is in प्लस वैल्यू, आप इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा H is greater than डेल्टा U। तो there is 3 possibilities lies, whether they are equal, whether delta H greater than delta U and delta H smaller than delta U। So this is very important relation between delta H and delta U। Thank you for watching my video. Bye bye.